guys, I am Kumar K. Previously, I worked at Amazon and Mia.net as a software engineer, and now I spend most of my time in guiding and training students like Mayank Kumar so they can reach their final goals and get jobs in top tech product based companies. So, today we are going to have this podcast with my favorite lovely student Mayank Kumar. He has more than 90% attendance in our daily life DSA plus OA plus CP training and one-to-one mentoring. And he has cracked off-campus SD offer from Visa, being a working professional as a 2024 CS grad. So let's go right to him and let's take his introduction. So Mayank, can you give a small introduction about yourself to our audience, Mayank? Yes, sir. So, hello everyone. My name is Mayank. Okay. I'm a 2024 graduate, and recently I've cracked Visa SD offer off campus. Okay, so congratulations, Mayank. And Mayank, what was your branch in engineering? So I was from CSC branch. Okay, got it. So Mayank, the first question I have written here for you कि मयंक आपकी ऑफ कैंपस जर्नी कैसी थी? तो बहुत सारे लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स और फ्रेशर्स है फाइनल ईयर के जो ये वीडियो देख रहे होंगे. बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है सबको कि भाई ऑफ कैंपस में क्या क्या करना पड़ा क्योंकि इंटरव्यूज आए, क्योंकि जनरली बहुत लोगों को कंप्लेंट्स होती है कोई इंटरव्यूज नहीं आ रहे. तो आपने क्या क्या किया अपने केस में कि आपको इतनी सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यूज आए लाइक वीजा, ब्राउजर स्टैक एक्सेट्रा. तो आप बताइए क्या आपकी ऑफ कैंपस जर्नी क्या है in getting the interviews and OA links? Yeah. So getting an off-campus job is really tough in Indian market. Okay. आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको अपने रिज्यूमे पे, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है. Okay. For that, I used your LinkedIn and resume optimization course, which actually really helped me a lot. In सारी कंपनी से कॉल बैक आने के लिए. So yes sir. So first of all अपना LinkedIn resume में ये सारा optimize होने के बाद भी there can be cases it can take you 3-4 months of continuous applying to these companies. Right. जब आप प्रोग्राम में थे तब मैंने आपका LinkedIn resume बार-बार रिव्यू किया था, तो धीरे-धीरे आपका सही हुआ था. LinkedIn resume भी कोई एक बार में ऑप्टिमाइज नहीं होता, उसमें भी 1-2 मंथ्स लगते हैं डिपेंडिंग ऑन केस चल रहा है. फिर भी आप कह रहे हैं कि सब अगर बेस्ट ऑप्टिमाइज भी हो गए तो भी 3 to 5 मंथ्स लगेंगे, राइट? सो ये 3 to 5 मंथ्स में क्या करना होता है? मतलब बहुत अप्लाई करना होता है कि क्या आपको प्रोसीजर करना होता है? उसके बारे में कोई आइडिया दे सकते हैं मैम? हाँ, so I think first of all these days it is very common कि you should always seek a referral. आप LinkedIn पे जाइए, दूसरे जिसकी ओपनिंग है उन एम्प्लॉइज को रीच आउट करिए, रिक्रूटर्स को रीच आउट करिए, सेइंग कि I have interest in this role, etc. And ultimately, बहुत सारे लोगों को मैसेज, DM, कोल्ड ईमेल करने के बाद you get a referral and after that you get assessment. Okay, so मतलब आपको ये चीज बहुत लॉन्ग टाइम तक डेली ट्राई करनी है, तब जाके आपको थोड़े बहुत कंपनियों के OA लिंक्स और इंटरव्यूज आएंगे, राइट? राइट. सो आपका वीजा में एक्चुअली द कंपनी जिसमें आपको जॉब आपने क्रैक किया उसका प्रोसेस क्या था? आपको कैसे वहां पर ओए का लिंक आया, क्या था वो आप थोड़ा बताइए. So I saw the opening on LinkedIn. Okay. I reached out to one employee on LinkedIn only who was my connection. Okay. So he gave me a referral. So after 2 days I got the online assessment link. Okay, you got the online assessment link after 2 days, right? 2 days. रेफरल के साथ अप्लाई करने के 2 दिन बाद आपको आ गया. And what was the time period? आप उसको कब तक दे सकते थे उस ओए को आप में? तो उसके लिए 2 weeks का टाइम दिया हुआ था कि आप 2 weeks में ओए अटेम्प्ट कर सकते हैं कभी भी एज पर योर कन्वीनियंस. तो आपने उसको कब अटेम्प्ट किया? So on first week only, on some weekend, I just sat for it. ओके, और आपने ओए को दे दिया. तो अभी ओए के बारे में डिस्कस करने वाले, मैंने क्वेश्चंस यहाँ लिख के भी रखे आपके लिए. तो ओए कितना टाइम पीरियड था जब आप ओए दे रहे थे, वो कितना टाइमर क्या था उसका? तो basically there were 4 questions and you will be getting 90 minutes for completing those 4 questions. Only 90 minutes for 4 questions, right? तो ये जितने भी 4 क्वेश्चंस आप ओए के आप बताने वाले हो, ये क्या आपने एग्जैक्टली पहले एक सेम टू सेम क्वेश्चन देख के रखे थे, सेम टू सेम कर रखे थे कि ये टोटली न्यू थे आपके लिए चारों के चारों? नहीं. So जितने भी क्वेश्चन थे were totally unseen and para based questions. Okay, story based questions, right? Story based questions.
सो यू मीन टू से कि हमको न्यू क्वेश्चंस को डील करने की हैबिट होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के Yes, साथ sir. करने के लिए फॉर द ऑनलाइन असेसमेंट, राइट? तो आप बताना स्टार्ट कीजिए, क्या पहला क्वेश्चन क्या था, क्या हो रहा था उसमें? So, sir, first question was related to prefix sum and hashing, uh, Okay. which I was able to do as I was like really good on these topics. I had really good hands on. Okay, Uh, okay. the second question was also a big para-based question, a story-based question, which like implementing it with Stack would make it Okay. like So in the second question, you are saying that the comprehension part was more important, understanding what they're trying to say. yes, sir. And then you use the stack to solve that Stack to, in DSA yeah. problem, right? अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में आप बताओ, So, वो कैसे लेवल yes, sir. So third question, comparatively tough tha. It was a simulation based and implementation heavy question, जिसमें Okay. काफी सारे conditions आपको take care करने थे and उसमें conditions और मतलब error आने का chance उसमें काफी ज्यादा था. So that too, so it took me like majority of my time for 40-45 minutes उसमें मुझे लगा third question solve करने में. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन में बहुत हैवी इम्प्लीमेंटेशन और सिमुलेशन करना है आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंड करके. फोर्थ क्वेश्चन में क्या हुआ मयंक, ये बताइए आपको. एक है फोर्थ क्वेश्चन भी डिफिकल्ट साइड पे था. इट वाज अ स्ट्रिंग एल्गोरिथम क्वेश्चन, केएमपी एंड या रेविट का यूज करके इट वाज like solvable. Okay. So that too I was able to. Got it. तो वो भी आपने कर लिया, congratulations. So वीजा जनरली प्रीफिक्स सम, हैशिंग, और आपने कोर्स में भी देखा होगा ग्रीडी वाला क्वेश्चन, राइट? फिर ये स्ट्रिंग वाला क्वेश्चंस हो गया. तो वीजा जनरली इन पर क्वेश्चंस पूछती रहती है, राइट? एंड सिमुलेशन वाले. सो अब बच्चों का इसमें क्वेश्चन रहता है, मैं चाहता हूँ आप इसका आंसर दो. सो पीपल थिंक क्या सिर्फ हम 40% टेस्ट केसेस सब क्वेश्चन के पास कर ले तो हो जाएगा, या 50% टेस्ट केसेस पास कर ले तो हो जाएगा? तो आपको इंडियन ऑफ कैंपस मार्केट में क्या लगता है कितना स्कोर लाना चाहिए, और आपका क्या आपको लगता है स्कोर था उसके अंदर? आपके कितने पास हो रहे थे? आपके सारे ही पास हो रहे थे? तो सर ये लाइक कुछ टेस्ट केस पास करके आई डोंट थिंक किसी का शॉर्ट लिस्टिंग हो पाता है ओएस में. सो आई मीन अभी लोग भी बहुत अच्छे मतलब बहुत प्रैक्टिस करके आते हैं एंड यू शुड आल्सो लाइक रेज द बार अगर आपको उनके साथ compete करना है तो. ऑल्सो अभी तो सर और भी तरीके हैं तो उनका भी यूज हो जाता है कभी कभार. तो उनको भी आपको मतलब आपको पढ़ाई से उनको टैकल करना आना चाहिए. यू शुड बी लाइक दैट टॉप ऑन द टॉप नॉच लेवल फॉर क्रैकिंग ओए नाउअडेज. तो आपका मतलब स्कोर फुल था उसमें स्कोर आपका, राइट? सो all the questions सारे टेस्ट केस पास हुए थे and that's why I got the interview call. Okay, तो आपने फुल स्कोर किया तब जाके आपको इंटरव्यू आया, नहीं तो इट्स नॉट दैट इजी टू गेट द इंटरव्यू, राइट? Yes. ओके मयंक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है. आप बताओ कि ओए जब आपने कर लिया तो आप कितने कॉन्फिडेंट थे ओए देने के बाद कि आपको इंटरव्यू आ जाएगा, और आपको कितने दिन बाद इंटरव्यू आया? तो like as I said, like I was able to do all the questions. तो मेरे को 3 to 4 days में रिक्रूटर का कॉल आया asking कि if I'm available in Bangalore, because they wanted to do like a off-campus on-site drive. On-site interview, तो मतलब इंटरव्यू के लिए आपको वीजा के ऑफिस में फिजिकली जाना पड़ा, राइट? Yes, sir. Okay, so these days, you know, due to AI, ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन इंटरव्यूज हो रहे, राइट मयंक? Yes, sir. Okay, so got that. तो आप ये बताओ कि कितने राउंड्स थे इंटरव्यू के? तो sir, there were 3 rounds. All 3 happened on the same day only at visa office? Yes, sir. All 3 happened on the same day. तो मयंक, जो आपकी फेवरेट कंपनी वीजा, आप मैंने लिख के भी रखा क्वेश्चन, आप बताना चालू करो क्या हुआ था फर्स्ट इंटरव्यू राउंड में? तो फर्स्ट इंटरव्यू स्टार्ट हुआ विद डीबीएमएस के कुछ क्वेश्चंस के साथ, जहाँ पे मतलब इंटरव्यूअर पूछ रहे थे जॉइंस के बारे में. और फिर तो आपको एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में पूछ रहे थे, राइट? वो इजी लेवल के थे कि मीडियम थे कि एकदम हार्ड लेवल पे जा रहे थे? नहीं सर, मीडियम टू हार्ड लेवल ही पूछ रहे थे, वो इजी क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे थे. ओके, तो एसक्यूएल डीबीएमएस के पार्ट के बाद आपको क्या पूछा उन्होंने? उसके बाद सर एक सॉर्टिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा था. अच्छा, डीएसए के लिए का क्वेश्चन पूछा जो सॉर्टिंग बेस्ड था, तो उसके अंदर क्या हुआ आपके साथ, आप बताओ. So in that, like the interviewer wanted me to actually
write the sorting algorithm. Like अच्छा, मतलब आपको सॉर्टिंग एल्गोरिथम पूरा लिखना पड़ रहा था, ऐसा नहीं कि आप हाँ डायरेक्ट सर, सॉर्टिंग फंक्शन यूज नहीं कर सकते हो डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, नहीं. So फंडामेंटल फुल। ओके हाँ, so you need to have like a full in-depth knowledge of the algorithm whichever you implement. और ओके उसके बाद उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी डिस्कशन सब कुछ वो हो रहा था. तो ये पूरा आपको व्हाइट बोर्ड पे इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा था मयंक? हाँ सर, पूरा मतलब कोड वो लाइन बाय लाइन इम्प्लीमेंटेशन वो देख रहे थे. ओके ओके, सो वो भी आपने अच्छे से कर ही दिया होगा। तो आप इसके बाद ये बताओ कि इसके बाद बस ये लाइक इतना ही पूछा था कि फर्स्ट राउंड में और भी कुछ है? तो इसके इसके बाद थोड़ा सा मतलब मिक्सचर ऑफ ऊप्स प्लस डीएस से क्वेश्चन पूछा था, जिसमें मतलब स्टैक प्लस थोड़ा बहुत ऊप्स रिलेटेड इनकैप्सुलेशन और वैसे टॉपिक्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन अच्छा, पूछा तो था. जनरली बच्चे क्या करते हैं, ऊप्स को मेमोराइज कर लेते हैं सेपरेटली और डीएसयू कर लेते हैं सेपरेटली, तो अगर इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो उनको आप मिक्स करके कोड नहीं कर पाओगे, राइट? एंड Yes, वीजा sir. वांटेड कि आपको उसका इन डेप्थ नॉलेज हो ताकि आप दोनों कांसेप्ट्स को मिक्स कर पाओ, ऊप्स और डीएसए, राइट? यस सर. वो भी आपने सही से हैंडल कर लिया। तो फर्स्ट राउंड होते ही सेकंड राउंड हुआ कि आपको कुछ बीच में ब्रेक मिला था? मैं So after like finishing the first round, we went back and after 10-15 minutes, they said कि I've cleared the first round. So after more 30 minutes, अच्छा, they मतलब हर राउंड एक एलिमिनेशन राउंड था तो ही आपको हाँ सेकंड जाने का, ऐसा नहीं है कि सबको 3 राउंड मिलेगा, ऐसा नहीं है? नहीं सर. ओके ओके ओके, सो तो लाइक आफ्टर 30 मिनट्स आपका सेकंड राउंड हुआ मैम? हाँ सर, तो आप 30-40 सेकंड राउंड मिनट्स में के बाद. बताना चालू करो कि क्या हुआ था। हाँ, सेकेंड राउंड सेकेंड राउंड सर पहले उन्होंने एक डीएसए क्वेश्चन ही पूछा था, priority क्यू और हैश मैप का. ओके So, which was also like a medium to hard level question. ओके In that, they were like really judging on different various test cases और मतलब code failures और ये सारी चीजें वो जज कर रहे थे कि क्या किस टाइप का कोड क्वालिटी है, और वो सारी चीजें वो जज कर रहे उसका थे. भी आपको कोड पूरा लिखना पड़ा था व्हाइट बोर्ड पे, राइट, इन द इंटरव्यू? यस सर, पूरा. और फिर आपको ड्राई रन भी करना पड़ा डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस के थ्रू। आप उसमें बोल रहे थे कि बहुत कोड क्वालिटी और एज केसेस हैंडलिंग चेक कर रहे थे, राइट? यस सर. ओके ओके, और फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के भी ट्रेड ऑफ्स आपको डिस्कस करने पड़े थे, सब कुछ करना पड़ा था उस क्वेश्चन के? यस सर, यस सर. ओके, तो उस क्वेश्चन के बाद क्या हुआ? सिर्फ यही क्वेश्चन आपको पूछा था कि और भी कुछ हुआ था सेकंड राउंड में? नहीं. सो उसके बाद कुछ एसक्यूएल क्वेरीज और भी कुछ एसक्यूएल क्वेरीज पूछी थी, जो मतलब मीडियम टू हार्ड लेवल कुछ क्वेरीज भी थी, और उसके बाद एक और डीएसए क्वेश्चन पूछा था जो मीडियम लेवल का था. तो ये सेकंड राउंड में आपको इतना सब कुछ पूछ लिया, तो उसका ड्यूरेशन क्या था सेकंड राउंड का? So it was around 50 minutes to 1 hour. तो सो इट्स प्रीटी डिफिकल्ट, आपको ये सारी चीजें उतने ही टाइम में करके उनको देना है, राइट? दो दो क्वेश्चन जी का, सर. वो भी उसमें इतना डीप डीप पूछ रहे हैं, हैंडलिंग एज केसेस वगैरह। तो सेकंड राउंड के बाद आप कितने कॉन्फिडेंट थे कि आपको थर्ड राउंड आएगा? उन्होंने एक्चुअली कितने देर के बाद थर्ड राउंड का बताया उसके बाद आपको? So second round के 10-15 minutes बाद they again called me saying कि I've cleared the second round. उसके बाद एक लंच ब्रेक हुआ एंड देन इट वाज द लास्ट राउंड, मतलब थर्ड राउंड. लास्ट राउंड आपका कौन सी चीज पे बेस्ड था? लाइक वाज इट प्योरली मैनेजरियल और इट वाज टेक्निकल प्लस मैनेजरियल? क्या चल रहा था थर्ड राउंड में? तो so it was like a technical plus managerial kind of round. ओके तो उसमें मतलब they started with like asking कि what is like my previous work experience, किन types के feature पे मैं काम कर रहा हूँ, किस type के product पे मैं काम कर रहा हूँ, all those things they wanted to know. And so that too like they were asking प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस और प्रीवियस प्रोजेक्ट्स का आर्किटेक्चर, सिस्टम डिजाइन जितना हो सके उतना अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज़ दे आर गोइंग टू आस्क दैट, राइट? right sir. फिर उसके बाद वो कहाँ पर गए वो सब पूछने के बाद? तो उसके बाद ये सब पूछने के बाद they again like take a dive in like technical stuff. तो वो क्वेश्चंस, डीप क्वेश्चंस पूछ रहे थे कंपाइलर्स पर, मेमोरी लीक्स पर, और रिकर्जन वगैरह सब, ये सारे मतलब थ्रेडिंग, ऑल दीज टॉपिक्स दे वर आस्किंग. रिकर्शन का आप थोड़ा डीपली बता सकते हैं कि वो क्या क्वेश्चन चल रहा था? क्योंकि आपने जब मुझे बताया था बहुत इंटरेस्टिंग था, व्यूअर्स को भी हेल्प होगा। हाँ, तो सर बेसिकली they were trying to manipulate that they were trying to run some with a code snippet, they were trying to run some infinite recursion kind of stuff, so which will like end to a memory leak kind of thing. So you need to like so you need to tell them ki
this can be a memory leak, how can you handle these things. ओके सो जनरली आपसे मतलब रिकर्जन का स्टैक स्पेस की आपको कितनी नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज, वो सब चेक किया जा रहा था। और Yes, वीजा में अगर हमको जॉब चाहिए तो हम ये सीएस फंडामेंटल वाले टॉपिक जो बच्चे स्किप कर सकते नहीं कर सकते, राइट? लाइक ओएस सीएन एंड ऑल, वो सब रिक्वायर्ड थे? नहीं नहीं सर, तो मतलब थ्रेड्स के साथ मतलब कॉन्करेंसी के भी क्वेश्चंस थे, रेस कंडीशंस के भी क्वेश्चंस थे, तो ये सारे टॉपिक सर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं when you are interviewing for company like visa. ओके, फिर इसके बाद राउंड एंड हो गया था कि कुछ मैनेजरियल स्टफ भी पूछा गया था आपको बिहेवियरल राउंड? तो यस सर, तो इसके बाद मैनेजरियल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे दो, which was like related to my again current job and current company, तो वो भी like I was able to answer very confidently. तो जब आपके तीनों राउंड्स हो गए तो फिर आपको तभी इमीडिएटली बताया कि अभी टाइम लिया उन्होंने बताने में, अभी फिर उसके बाद? नहीं सर, तो उसके बाद उन्होंने एक वीक का टाइम लिया, एंड देन आई गॉट द फाइनल कांग्रेचुलेशन मेल। ओके, फिर आपने मुझे मैसेज करके बताया था, राइट? कॉल करके। यस सर। सो कांग्रेचुलेशंस वन मोर टाइम मैन। अब फाइनल के दो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके? सो बहुत लोग को जानना है कि आपकी प्लेसमेंट प्रिपरेशन जर्नी कैसी थी, आपकी डीएसए प्रिपरेशन जर्नी कैसी थी, आपने लास्ट ईयर में चालू किया कि लास्ट ईयर के बाद चालू किया, क्या है आपकी प्रिपरेशन जर्नी, आप वो बताना चालू करो मैक सिंस द लास्ट 1 ईयर। यस सर, सो मैंने कॉलेज में ही डीएसए वगैरह चालू कर दिया था, एंड कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू ही मैंने मतलब अपनी फर्स्ट कंपनी ज्वाइन करी एज अ इंटर्न, बट आई डिड नॉट लेफ्ट like DSA preparation and all these things and applying off campus because I wanted to be at a better place. तो मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो लाइक एक पॉइंट के बाद जब थ्रेशोल्ड हिट हुआ कि मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन से नहीं हो पाएगा, या फिर रिज्यूमे वगैरह शॉर्टलिस्टिंग में बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे थे, मतलब आपको पता चला होगा कि ओए के लिए न्यू क्वेश्चंस भी करना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड डीएसए, राइट? यस सर। तो इन चीजों में मतलब एक अच्छा हैंड्स ऑन लेने के लिए लाइक आई टुक योर कोर्स फॉर वन ऑन वन मेंटरिंग और लाइक रिज्यूमे, लिंक्डइन एंड सीपी के क्वेश्चंस और ओए के क्वेश्चंस, लाइक जितना ज्यादा मैं प्रैक्टिस कर पाऊं, सो दैट कुड बी लाइक हेल्पफुल फॉर क्रैकिंग अदर कंपनीज ओए। तो फिर आपने प्रिपरेशन कैसे करना चालू किया? आप बिगिनर बैच गए थे, प्रो बैच गए थे, आपने कैसे किया था वो बताइए। तो जैसा लाइक मेरे को स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का पहले से आइडिया था, तो आई डायरेक्टली ऑप्टेड फॉर प्रो बैच। तो उसमें मुझे मतलब और कॉन्सेप्ट अच्छे स्ट्रांग हो गए, जो सीपी रिलेटेड ओए रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे वो अच्छे स्ट्रांग हुए, तो उससे और मतलब नए क्वेश्चंस, अनसीन क्वेश्चंस देखने का मुझे मतलब करने का मुझे कॉन्फिडेंस आया, एंड सो आई यूज्ड टू लाइक जॉइन लाइव सेशंस और OANCP, राइट? यस सर। और आप ऐसे ऐसे करते करते इंप्रूवमेंट करते चले गए। सो कांग्रेचुलेशंस। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो हमने अभी बात की उसका एनालिसिस यही है कि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपको स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन भी करने हैं, बट आपको थोड़ा ओएसीपी भी करते रहना है अगर आपको बहुत ऊपर वाली लेवल की कंपनीज में जाना है, राइट? इन द टॉप पीवीसी कंपनीज। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, वर्किंग प्रोफेशनल्स ने बोला है कि जनरली दे आर वेरी डीमोटिवेटेड बिकॉज दे थिंक कि भाई ऑफ कैंपस में तो नंबर लगता ही नहीं है, अप्लाई करते इंटरव्यू नहीं आता, एंड दूसरी चीज की टाइम नहीं है हमारे पास, हम कैसे टाइम मैनेज करें, हम तो जॉब भी कर रहे हैं। सो आपने कैसे टाइम मैनेज कर डीमोटिवेशन को डील किया, और आप दूसरों को क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल, उनको आपके साथ करना है? तो सर मैं कहना चाहूंगा कि अगर मतलब आप चाहते हो तो टाइम निकल जाता है, अगर आपको ऑफ कैंपस क्रैक करना है, तो आई थिंक यू शुड नॉट लाइक फील डीमोटिवेटेड कि एक जगह अप्लाई किया नहीं हुआ, 2 जगह अप्लाई किया, लाइक नंबर ऑफ टाइम आपको अप्लाई करना पड़ेगा, रिजेक्शंस आएंगे, लाइक 80-90% चांसेस होता है कि आपको लाइक असेसमेंट ना आए कंपनी से, बट स्टिल यू शुड नॉट फील कि मतलब डीमोटिवेट हो गए हैं ये वो, और मतलब अच्छा मतलब जस्ट कीप अप्लाइंग, टाइम आप मैनेज करिए, अगर मॉर्निंग में या इवनिंग में जितना भी आप टाइम दे सकते हैं, जस्ट स्टे कंसिस्टेंट, तो आई थिंक दैट विल लाइक हेल्प। और महेश, आप खुद कैसे टाइम मैनेज करते थे? आप कब पढ़ते थे अपने जॉब के अलावा? तो यस सर, तो सर मैंने 2 स्लॉट मतलब ऐसे फिगर आउट किए थे जहाँ पे मेरे को थोड़ा टाइम मिलता था पढ़ने का, तो इफ आई वेक अप अर्ली
तो 1 से 1.5 घंटा सर मेरे को सुबह मिल जाता था, और ऑफिस से आने के बाद मेरे को 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा शाम को भी मिल जाता था, तो इस तरीके से। आपने कर यस दिया, सर। राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मयंक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। होपफुली यस सर। प्रोग्राम में जो और भी बच्चे हैं जो आएंगे वो भी आपके ऐसे ऑफर्स क्रैक करें फ्यूचर में। सो नाइस टॉकिंग टू यू मयंक, एंड होपफुली दिस इज अ वेरी हेल्पफुल पॉडकास्ट फॉर ऑल ऑफ यू।